Hello dear student. Today's topic is Tundu disease of wheat, which is also a bacterial disease. Tundu disease of wheat is also known by various names like yellow ear rot of wheat, Tundu disease of wheat, bacterial rot of wheat ears, bacterial spike blight, and yellow slime disease. It is often associated with a nematode disease, the ear cockle disease of wheat. And this disease is common in India since quite a very long time. This disease was first reported by Hutchinson in 1917 from Punjab in India and is known to occur in many countries of the world including China, Australia, Cyprus, Canada, Egypt, Pakistan, Brazil and so on. इंडिया के अंदर द डिजीज़ हैज़ बीन रिपोर्टेड फ्रॉम पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी एंड राजस्थान. आफ्टर दैट this disease also studied by Vasudeva and Hingorani in 1952 and Sabet 1954, and it is later confirmed by many that the infection by bacteria occur only when they are in association with nematode Anguilla triticei in the soil. ये जो डिजीज़ है टुंडू डिजीज़ हमेशा जो तभी इन्फेक्शन कॉज करती है जब ये एक निमेटोड एंगुइना ट्रिटिसाई के एसोसिएशन में रहती है. ये दोनों मिलकर एसोसिएशन के साथ ही वीट के अंदर ये डिजीज कॉज करती हैं. दैट इज वाई दिस डिजीज इज ऑफन एसोसिएटेड विथ ईयर कोकल डिजीज ऑफ वीट विच इज कॉज्ड बाय निमेटोड एंगुइना ट्रिटिसाई. The nematode Anguilla triticei, which is responsible for transforming the developing grain in wheat ears to gall or ear cockle disease, is associated with the bacterium in causing the rot. It may be mentioned that the disease occur due to the combined action of the wheat nematode Anguilla triticei and the bacterium Clavibacter ट्रेटिसाई. तो ये दोनों के एसोसिएशन से, वन ऑफ द निमेटोड एंड अदर इज बैक्टीरिया, दोनों के एसोसिएशन से दिस डिजीज द इन्फेक्शन इज कॉज इन द वीट के अंदर, जिसको हम कहते हैं टुंडू डिजीज ऑफ वीट. एंड इन व्हेन इट इज कॉज्ड बाय एंगुइना ट्रेटिसाई निमेटोड इट्स कॉज ईयर कोकल डिजीज ऑफ वीट. This disease is also known as yellow ear rot disorder. It is caused by the nematode and bacteria, and the combined action of nematode Anguilla triticei and bacterium Corynebacterium triticei result in Tundu disease. This disease is identified by the yellow exudates on the spikes stunted seedlings. दोनों के अंदर, spikes के अंदर और seedling के अंदर जो येलोइंग हो जाती है, येलो एक्सुडेट्स बाहर आता है, उससे इस डिजीज को आइडेंटिफाई किया जाता है. सिम्टम्स, मेन सिम्टम्स क्या है इस डिजीज के? द अर्ली सिम्टम ऑफ टुंडू डिजीज आर रिंकलिंग ऑफ लोअर एंड ट्विस्टिंग ऑफ द मिडिल लीव्स जनरली एविडेंट व्हेन द क्रॉप इज रीचिंग मैच्योरिटी. तो जो इस डिजीज का जब सिम्टम स्टार्ट होता है वो लोअर जो लीव्स होती हैं उनकी रिंकलिंग स्टार्ट हो जाती है, ट्विस्टिंग स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम मिडिल जब क्रॉप मैच्योर होने लगती है. दिस इज फॉलोड बाय कर्लिंग एंड twisting of the spike. This you can see in the diagram. This disease is characterized by twisting, distortion of ear head and rotting of spikelets with profuse oozing of yellow liquid from the infected tissues. When actually is that bright yellow strictly slime exudate mainly from the ear and envelop it. येलो ईयर रॉट डिजीज भी कहते हैं, जो येलो एक्सुडेट इस डिजीज से बाहर आता है इन्फेक्शन के बाद में. इन एडिशन द स्लाइम ट्रिकल डाउन टू ग्लूम्स, स्टेम एंड लीफ शीथ एंड एनवलप देम. द स्लाइमी सब्सटेंस बिकम डीपर येलो, हार्ड एंड ड्राई इन द ड्राई वेदर, रिजल्टिंग इन रिटार्डेशन ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड डिस्टॉर्शन ऑफ स्टेम एंड ईयर. जो स्लाइमी सब्सटेंस, इसका जो येलो एक्सुडेट है वो ड्राई वेदर के अंदर काफ़ी हार्ड हो जाता है और उसके कारण जो प्लांट की ग्रोथ है वो रिटार्डेड हो जाती है, कम हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है और स्टेम और ईयर के अंदर डिस्टॉर्शन स्टार्ट हो जाता है, जैसे यू कैन सी इन द दिस इन्फ्लोरेसेंस ऑफ वीट.
The Tundu disease is characterized by twisting of stem, distortion of the ear head, and rooting of the spikelet with a profuse oozing liquid from the affected tissue. Hence, the name of the disease is yellow ear rot. The ooze contain masses of bacterial cell. पहले भी आपको बताया येलो ईयर रॉट क्यों कहते हैं इस डिजीज को, क्योंकि इसके अंदर जो स्लाइमी एक्सूडेट बनता है वो डीपर येलो कलर का बनता है। तो बाहर जो एक्सूडेट आता है, ऊजेज आउट जो बाहर निकलता है लिक्विड के फॉर्म में, वो येलो कलर का होता है, इसलिए इसको हम येलो ईयर रॉट डिजीज भी कहते हैं। द निमेटोड अलोन कॉज रिंकलिंग, twisting and various the distortion of the leaves and stem and also form small round galls on the leaves। क्योंकि निमेटोड्स नॉर्मली ये क्या करते हैं, लीव्स के अंदर गॉल्स का फॉर्मेशन करते हैं। एंड द इन्फेक्टेड प्लांट्स आर शॉर्टर एंड थिकर देन द हेल्दी प्लांट्स। इन द डिस्टॉर्टेड ईयर हेड्स डार्क गॉल्स आर फाउंड इन प्लेस ऑफ कैरिनल्स। व्हेन द बैक्टीरियम इज एसोसिएटेड विद द निमेटोड, the disease symptoms are intensified at the flowering stage and the yellow ear rot set in। जब बैक्टीरिया जो है निमेटोड के साथ में एसोसिएट हो जाता है, तब जो सिम्टम्स होते हैं वो फ्लावरिंग स्टेज तक इंटेंस हो जाते हैं और येलो जो ईयर रॉट है वो डिजीज डेवलप हो जाती है। ड्यू टू द कंबाइंड एक्शन ऑफ द निमेटोड एंड बैक्टीरियम, द ईयर हेड बिकम chaffly and the carinals are replaced by the dark nematode gall which are also contaminated with the bacterium, and the infected plant produce more tillers than the healthy ones। ज़्यादा जो इन्फेक्टेड प्लांट होता है, एक तो उसकी जो साइज होती है वो छोटी होती है और ज़्यादा टिलर्स प्रोड्यूस करता है हेल्दी प्लांट्स से। Causal organism of Tundu disease. This Tundu disease of wheat is caused by Clavibacter or Corynebacterium tritici, which belong to Actinomycetes group of bacteria. This bacterium is rod-shaped, motile with one polar flagellum, gram positive, and it is measured 2 to 3 to 1 micron. And the colonies of this bacteria develop on agar media are bright yellow primarily, then turning to orange round, convex with entire margin। margin smooth होता है इनका, moist, glistering, opaque in center and opalescent at edges। तो नॉर्मली ये ग्राम पॉजिटिव रॉड शेप्ड मोटाइल वन फ्लैजिला बैक्टीरिया है। When the disease starts from seed, the disease starts from the seeds contaminated with the nematode galls। When such कॉन्टामिनेटेड सीड जो निमेटोड गॉल से कॉन्टामिनेटेड हैं, जब ये कॉन्टामिनेटेड सीड्स जो है फील्ड के अंदर उगाए जाते हैं, सोन किए जाते हैं, देन द सीड एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द सॉइल एंड द लार्वा एस्केप फ्रॉम द गॉल एंड शॉर्टली क्लाइंब अप द यंग व्हीट प्लांट। मतलब मेन जो कॉन्टामिनेशन है इस डिजीज का वो स्टार्ट होता है फ्रॉम सीड्स जो कि निमेटोड्स से कॉन्टामिनेटेड होते हैं। और ऐसे सीड्स को जब ग्रो किया जाता है तो ये सीड्स सॉइल से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं और जैसे ही मॉइस्चर एब्जॉर्ब होता है तो उस सीड से जो लार्वा हैं, वो निमेटोड्स के लार्वा हैं, गॉल से बाहर निकलते हैं और जो यंग व्हीट प्लांट है उनको इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। The nematode have a tendency to seek the tender growing point of the plant where they remain as a ectoparasites की तरह ये रहते हैं, जो growing points होते हैं वहाँ पर। After the plants flower, the nematode enter the floral parts and form galls in the ovaries। वेजिटेटिव ग्रोथ के बाद में जैसे ही फ्लावर डेवलप होते हैं तो निमेटोड्स क्या करते हैं, फ्लोरल पार्ट्स के अंदर एंटर कर जाते हैं और ओवरीज के अंदर गॉल का फॉर्मेशन करते हैं। वाइल विद इन द गॉल्स सेक्सुअल डिफरेंशिएशन अकर, कॉपुलेशन टेक्स प्लेस एंड द फीमेल ले एग्स अप टू 2000 in number and the eggs hatches into larva under favorable condition and become they are in the form of active parasites के रूप में ये वर्क करते हैं। Once the nematode is inside the tissue of the ovary, the bacterium becomes active and cause rotting। जैसे ही निमेटोड जो ओवरी के अंदर एक्टिव हो जाते हैं, ओवरी के अंदर एंटर करते हैं, तब जो बैक्टीरियम है वो एक्टिव हो जाता है और ये रॉटिंग स्टार्ट कर देता है, जो उस प्लांट को गलाना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही रॉटिंग बैक्टीरिया का इन्फेक्शन स्टार्ट होता है, रॉटिंग स्टार्ट होती है, द येलो ooze कमिंग आउट ऑफ द रॉटिंग ईयर हेड
provide the inoculum for the secondary spread of the disease which is favored by wind and rain. तो पहले जो ये डिजीज है वो स्टार्ट होती है निमेटोड से, और जैसे ही जो निमेटोड्स होते हैं वो ओवरी के अंदर एंटर करते हैं, उसके बाद जो बैक्टीरियम है वो एक्टिव होता है, बैक्टीरिया क्लेविबैक्टर ट्रिटिसाई वो एक्टिव हो जाता है और वो फिर रॉटिंग स्टार्ट करता है, और जैसे ही रॉटिंग स्टार्ट होती है तब जो येलो यूजेज है वो उस पार्ट से बाहर निकलने लग जाता है. डिजीज साइकिल में जो फर्स्ट इज पेरिनेशन. बोथ ईयर कोकल एंड टुंडू डिजीज अकर ऑन व्हीट फ्रीक्वेंटली इन एसोसिएशन. The bacteria are carried along with the galls developed due to ear cocal disease caused by the nematode. ये पहले ही आपको बताया कि जो डिजीज है दोनों के एसोसिएशन से होती है. Such galls get mixed with the seed lot and the pathogen perinates therein. In addition, the nematode galls containing bacteria may survive in soil for 20 years or more. It has been studied that the bacteria can survive inside the nematode gall for a very long time, probably for at least 5 years. तो जो बैक्टीरिया है वो निमेटोड गॉल के अंदर बहुत लंबे टाइम तक सर्वाइव कर सकता है, और जो निमेटोड गॉल्स हैं जिनके अंदर बैक्टीरिया है वो सॉइल के अंदर ऐसा मानते हैं कि 20 years तक दे कैन सर्वाइव इन द सॉइल एंड ड्यूरिंग अंडर फेवरेबल कंडीशन दे इन्फेक्ट द क्रॉप. Next is primary infection. When seeds contaminated with bacteria and nematode galls are shown in the field, the galls absorb moisture from the soil and release out the nematode larva and bacteria. If the galls are already perpetuating in soil, they also release nematode larva and bacteria in the same manner. And the nematode larva shortly start climbing up on the young wheat plant carrying bacteria with them. After the plant flowers, the nematode enter the floral parts where the bacteria established primary infection causing Tundu disease. And this simultaneously, the nematode may cause ear cocal disease and the two disease may appear in association on wheat plant. तो जैसे ही पेरिनेशन होता है उसके बाद जैसे इन्फेक्शन स्टार्ट होता है तो दोनों डिजीज एक साथ एसोसिएशन में व्हीट प्लांट को इन्फेक्ट करती हैं. सेकेंडरी इन्फेक्शन के टाइम में चांस ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन ड्यूरिंग द सेम ग्रोइंग सीजन आर लिस्ट एज द डिजीज अपीयर व्हेन द क्रॉप इज रीचिंग मैच्योरिटी. जैसे ही क्रॉप मैच्योर हो जाती है तो सेकेंडरी इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है. बट इफ मोस्ट फेवरेबल कंडीशन प्रिवेल इन द फील्ड फॉर अ कंसिडरेबल टाइम पीरियड, the bacteria produced in primary infection and release the yellow slimy ooze can cause secondary infection on the healthy plant. यदि conditions favorable रहती हैं और क्रॉप फील्ड में काफ़ी लंबे टाइम तक है तब ये जो प्राइमरी इन्फेक्शन से येलो यूज बाहर निकलता है, लिक्विड बाहर आता है, वो हेल्दी प्लांट को भी वापस हेल्दी प्लांट को भी इन्फेक्ट करता है. अभी डिजीज है, इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? As soon as the symptoms appear, the infected plant should be uprooted and burned. जैसे ही हमें symptoms स्टार्ट दिखाई देते हैं फील्ड के अंदर, उसके साथ ही हमें जितने भी इन्फेक्टेड प्लांट हैं उनको हमें बाहर निकाल लेना चाहिए और सबसे पहले उसको जला देना चाहिए. सीड्स को चेक करना है दैट सीड्स आर नॉट कॉन्टामिनेटेड विथ निमेटोड गॉल, क्योंकि हमारी जो इन्फेक्शन है वो कॉन्टामिनेटेड जो सीड्स हैं उसी से स्टार्ट होता है. तो seeds not contaminated with nematode galls should be sown preferably is non-infected field. Seeds can be made gall free by soaking them in strong solution of common salt. This solution called brine. सबसे पहले हमें इसको जो contaminated seeds हैं उसको हम salt के साथ में इसको treat कर लेना चाहिए. Prepare at the rate of 40 lb salt dissolved in 25 gallon of water. And the galls float on the surface of the solution and removed. तो क्या होगा जब हम इस solution के साथ उसको ट्रीट करेंगे तो जो गॉल्स होंगे वो solution की सरफेस पर फ्लोट करने लग जाएंगे और उसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं. एंड दिस मेथड इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड एंड रिकमेंडेड स्ट्रॉन्गली. तो सबसे स्ट्रॉन्ग मेथड ये कि सबसे पहले हमें जो कॉन्टामिनेटेड सीड्स हैं निमेटोड गॉल्स के उसको ही हमें सबसे पहले रिमूव कर देना चाहिए ताकि जो आगे इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा लेवल तक इंक्रीज नहीं हो.
In tropical countries, summer plugging help destroy bacteria and nematode occurring in soil by heat and desiccation and thus reduce disease incidence in the next season. ट्रॉपिकल कंट्रीज जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे क्या होता है, समर्स के दौरान हमें प्लोइंग कर देनी चाहिए, तो उससे क्या बैक्टीरिया और जो निमेटोड सॉइल के अंदर हैं वो बाहर आ जाएंगे और हीट की वजह से वो ख़त्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और इस तरह से हम इन्फेक्शन को काफ़ी लेवल तक हम नेक्स्ट क्रॉप में कम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इस डिजीज़ को कंट्रोल में कर सकते हैं। टुंडू डिजीज़ जो वीट की है मेनली बैक्टीरिया और निमेटोड के एसोसिएशन से होती है, तो इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर वीट क्रॉप, क्योंकि वीट को दोनों ही बैक्टीरिया एंड निमेटोड एक साथ अफेक्ट करते हैं और दो डिजीज़ कॉज करते हैं। थैंक यू।